ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ مختلف محکموں اور افسران کے درمیان قریبی تال میل انتہائی اہمیت کا حامل۔ عوامی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے سرکار کر رہی ہے حد درجہ سنجیدگی کا مظاہرہ۔ ایل جی منوج سنہا۔ نئی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی سیکیورٹی نظام کے لیے بن رہی ایک سنگین چیلنج۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر۔ فلاح و بہبود سے متعلق مرکزی اسکیموں اور پروگراموں کی مؤثر عمل آوری یقینی بنانا وقت کا تقاضا۔ مرکزی وزیر برہانو پرتاپ سنگھ اور ایل جی کے مشیر آر آر بھٹناگر نے یو ٹی میں نئے قائم کیے گئے 7 میڈیکل کالجوں کے تعمیراتی کام کا لیا جائزہ۔ پروجیکٹوں کے مقررہ مدت کے اندر تکمیل پر دیا زور۔ خبریں تفصیل سے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ سماجی اقتصادی حصولیابی، متحرک اور ذمہ دار انتظامیہ کی دستیابی کی بدولت سرکار کے ساتھ عوامی امنگیں حد درجہ بڑھ گئی ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ایل جی ملاقات کے تحت آج ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے بیک ٹو ولیج پروگرام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ورچوئل طریقے سے منعقدہ اس ملاقات میں چیف سیکرٹری، مختلف اضلاع کے ترقیاتی کمشنروں اور پولیس افسران نے شرکت کی۔ اس دوران ایل جی نے کہا کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ عام آدمی کو اس بات کے لیے مائل کریں کہ وہ انتظامی عمل میں سرگرم شرکت کرے۔ انہوں نے کہا کہ بیک ٹو ولیج پروگرام کے چوتھے مرحلے میں 4500 گیزیٹڈ افسران سمیت مختلف سطح کے 25,000 ملازمین شرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع ترقیاتی کمشنروں اور مختلف محکموں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ہر طرح کی خدمات دستیاب رکھنے کو یقینی بنائیں، جبکہ پروگرام کے دوران نوجوانوں، ہنرمندی کے فروغ، خود روزگار، پنچایتی راج اداروں کو مزید مستحکم بنانے، نشہ مکت پنچایت اور پائیدار و مجموعی ترقی کے لیے فلاحی اسکیموں کی 100% عمل آوری کی طرف خصوصی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے عام لوگوں کے ساتھ اظہار خیال بھی کیا اور ان کی مشکلات اور معاملات کے حوالے سے جانکاری حاصل کی۔ موصوف نے متعلقہ افسران سے کہا کہ سرکار عوامی مشکلات کو دور کرنے کے لیے حد درجہ سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور وقت کا تقاضا ہے کہ سبھی محکمے اور افسران قریبی تال میل کے ساتھ کام کر کے سرکار کی حصولیابیوں کو برقرار رکھیں۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ پیمنٹ فیل؟ لیکن پیسے تو کٹ گئے، گئی میری محنت کی کمائی۔ ہو جائے گی بھرپائی، فکر مت کرے میرے بھائی۔ اگر ڈیجیٹل ٹرانزیکشن فیل ہو جائے اور اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جائے تو بینک وقت سے پیسے لوٹائے گا، ورنہ کمپنسیشن کی فراہمی نہیں تو آر بی آئی کے اومبڈسمین سے شکایت کریں آپ۔ یا بل میری فیس آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ اور امریکہ نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سخت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ 26/11 کے ممبئی حملوں کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کل ممبئی میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی انسداد دہشت گردی کی کمیٹی کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ممبئی کے 26/11 کے دہشت گردانہ حملوں کے کلیدی سازش کاروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پاکستان کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں دہشت گردوں کو فہرست میں شامل کرنے کے لیے بھارت اور امریکہ کی کوششوں کو روکنے کے لیے چین کی بھی نکتہ چینی کی۔ موصوف نے دہشت گردی پر قابو پانے کی بین الاقوامی کوششوں کو مستحکم کرنے کے بھارت کے عزم کو بھی دہرایا۔ عالمی دہشت گردی سے متعلق بھارت کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ اینٹی بلنکن نے کہا کہ 2008 کے قتل عام کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ اس دوران آج دوسرے دن دہشت گردی کے مقاصد کے لیے نئی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں کے استعمال کی روک تھام پر انسداد دہشت گردی کمیٹی کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مکمل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ دہشت گردی بدستور انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور ایشیا اور افریقہ میں دہشت گردی کا خطرہ بڑھتا اور پھیلتا جا رہا ہے۔ ایم ایس ایم ای کے مرکزی وزیر مملکت بانو پرتاپ سنگھ نے فلاح و بہبود سے متعلق مختلف مرکزی اسکیموں اور پروگراموں کی مؤثر عمل آوری پر زور دیا ہے۔ موصوف نے آج سنگم اونتی پورہ کا دورہ کر کے وہاں کرکٹ بیٹ انڈسٹری سے وابستہ یونٹ ہولڈروں کے ساتھ اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ امر باعث اطمینان ہے کہ یہاں اس انڈسٹری کو فروغ مل رہا ہے اور اچھی تعداد میں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دستیاب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان یونٹ ہولڈروں کو مختلف مرکزی اسکیموں سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ یونٹ ہولڈروں کی طرف سے ان کی نوٹس میں لائے گئے مختلف معاملات ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ انہوں نے چرسو پلوامہ میں جن ابھیان میں شرکت کی، کھیل مقابلے کا افتتاح کیا اور عام لوگوں اور عوامی نمائندوں کے ساتھ اظہار خیال بھی کیا۔
LG के मुशीर RR भट्टागर ने आज एक आला सतही मीटिंग के दौरान अनंतनाग, बारामूला, राजौरी, डोडा, कठुआ, उधमपुर और हंदवाड़ा में नए कायम किए गए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों के लिए तामीराती काम पर हो रही पेशरफ्त का जायजा लिया। इस दौरान मौसूफ ने अमल आवरी एजेंसियों से कहा कि वो अपनी अफरादी कुव्वत और मशीनरी को मज़ीद मुतहरिक करके काम की रफ्तार में सूरत लाएं ताकि इन अहम प्रोजेक्टों के मुकर्रर मियाद के अंदर तकमील को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्टों की तकमील के लिए तयशुदा डेडलाइन में किसी भी सूरत में तौसी नहीं की जाएगी। जम्मू व कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने आज हाईकोर्ट की जम्मू विंग के लिए ई सेवा केंद्र और ई फाइलिंग से मुतालिक हेल्प डेस्क काउंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जस्टिस संजीव कुमार और हाईकोर्ट के दीगर जज साहिबान और अदालती अफसरान भी मौजूद थे। इस सहूलियात से वकला और अदालतों से रुजू करने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी और उन्हें अपने मुकदमात से मुतालिक मुख्तलिफ मालूमात आसानी के साथ दस्तयाब रहेंगी। मकानात और शहरी अमूर की मरकजी वजारत ने जम्मू कश्मीर के 78 बल्दियाती इदारों के लिए 153 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। तकरीबन 17 अरब रुपए मालियत के इन प्रोजेक्टों को अमरुद के दूसरे मरहले के तहत वजारत की 15वीं एपेक्स कमेटी की मीटिंग के दौरान मंजूरी दी गई है। वजारत के सेक्रेटरी मनोज जोशी की सदारत में मुनाकिदा इस मीटिंग में दीगर अफसरान के अलावा श्रीनगर और जम्मू के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के कमिश्नरों ने भी शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने कहा कि इस पार्टी ने नया कश्मीर के प्रोग्राम में खवातीन की बाइख्तियारी के लिए जो खाका मुरतब किया है और इस हवाले से जो काम किया है वो नाकाबिल फरामोश है। श्रीनगर पार्टी दफ्तर पर पुलवामा जिले की खवातीन वर्करों के एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जहां कश्मीर में लोगों को बुनियादी सहूलियात के हवाले से मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है, वहीं सिंफ नाजुक को भी कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मौसूफा ने कहा कि खवातीन को आगे आकर जम्मू कश्मीर को मौजूदा सूरत हाल से बाहर निकालने में अपना भरपूर रोल अदा करना होगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एक इजलास आज पार्टी के श्रीनगर सदर दफ्तर में सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर की सदारत में मुनाकिद हुआ। इस दौरान इजलास में शामिल लीडरों ने शुमाली कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया और पार्टी को जमीनी सतह पर मजीद मजबूत बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। इजलास के दौरान पार्टी की जानिब से जारी अवामी राबता मुहिम का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर गुलाम हसन मीर ने पार्टी लीडरों और कारकुनों से कहा कि वो अपनी सियासी सरगर्मियों और अवामी राबता मुहिम में सूरत लाएं। टैगोर हॉल श्रीनगर में आज से श्रीनगर का पहला बैन अवी फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ। इस 2 रोजा फेस्टिवल के दौरान कई बैन अवी शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज और मौसीकी के वीडियोज की स्क्रीनिंग की जा रही है। आज इफ्तिताई तकरीब पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इस मौके पर कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने इस फिल्म फेस्टिवल के इनेकाद पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि अम्र काबिल जिक्र है कि इस फेस्टिवल में मुल्क के सभी हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले मंदुबैन शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस फेस्टिवल के मुस्तकबिल में होने वाले शुमारों में बैरून ममालिक के मंदुबैन भी शिरकत करेंगे। सीनियर मकामी आर्टिस्टों ने इस फेस्टिवल के यहाँ इनेकाद के लिए मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया। जिला तरक्याती कमीशन बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद ने आज बांडीपोरा में मुआज़ शहरियों के लिए एक घर का इफ्तिताह किया। यह सहूलत समाजी बहबूद महकमे ने मरकजी सरकार की समाजी इंसाफ एंड एम्पावरमेंट वजारत की AVAY स्कीम के तहत कायम की है। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि मुआज़ शहरियों के लिए क़याम ताम समेत मुख्तलिफ सहूलियात दस्तियाब रखने के लिए यह घर कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि इस घर में रहने वाले मुआज़ शहरियों को तिब्बी सहूलियात दस्तियाब रखने के लिए डॉक्टर और नर्स भी तैनात रहेंगे। JKEDI के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने कहा कि सरकार के लिए मुमकिन नहीं कि सभी पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां फराहम करे। मौसूफ ने आज ITI तुलबाग पांपोर के तलबा के सनतकारी से मुतालिक एक जानकारी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कहा कि नौजवानों को सनतकारी में गहरी दिलचस्पी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि फूड प्रोसेसिंग, बागबानी, पशुपालन, फैशन टेक्नोलॉजी और ऐसे दीगर सेक्टर जिनके लिए खाम मवाद मकामी तार मौजूद है में तिजारत के रिवायती तरीकों के बजाय इख्तरा लाने की अशद जरूरत है। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद कर रहा है ताकि मुख्तलिफ सरकारी प्रोग्रामों के हवाले से नौजवानों को पूरी जानकारी फराहम की जा सके। ट्राइबल अफेयर्स के सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी ने आज बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत शुपियां जिले के शीरमाल पंचायती हल्के का दौरा किया। अफसर मौसूफ ने लोगों के साथ इजहार ख्याल के दौरान बैक टू विलेज प्रोग्राम की अहमियत और इफादत उजागर की। उन्होंने लोगों से कहा कि वो जिला इंतजामिया के साथ राबिता बनाए रखें ताकि जिले की तरक्याती जरूरियात को भरपूर तरीके से पूरा किया जा सके। उन्होंने DDC चेयरपर्सन और मेंबरान के साथ भी इजहार ख्याल किया।
बैक टू विलेज प्रोग्राम के चौथे मरहले के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है। इस सिलसिले में अहरबल कुलगाम में मुनाकिदा प्रोग्राम में डायरेक्टर टूरिज्म फजलुल हसीब ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंतजामिया सियाहती मकाम अहरबल को मजीद जाजिब नजर बनाने के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि यहाँ जल्द ही सरमाई खेलों का एहतमाम किया जा रहा है। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल भी मौसूफ की नोटिस में लाए गए। इस दो रोजा प्रोग्राम में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन और कई दीगर महकमों के सरबराह ने भी शिरकत की, अवामी मसाइल से आगाही हासिल की और अपने मातहत महकमों के काम का जायजा लिया। फाइनेंस महकमे के डिप्टी सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन ने जन अभियान के तहत शादी मर्ग ब्लॉक की कई पंचायत हलकों का दौरा करके इन पंचायतों के जरिए दरदस्त लिए गए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों और आम लोगों के साथ इजहार ख्याल भी किया और बैक टू विलेज प्रोग्राम की अहमियत और इफादियत उजागर की। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत चीफ सेक्रेटरी के प्राइवेट सेक्रेटरी लतीफ अहमद, जो कि इस प्रोग्राम के चौथे मरहले के लिए नामजद अफसर भी हैं, ने नौगाम बी श्रीनगर में मुनाकिदा ग्राम सभा की सदारत की। इस ग्राम सभा में डीडीसी मेंबर, बीडीओ और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। सभा के दौरान लोगों ने मुख्तलिफ बुनियादी सहूलियात से मुतालिक मुतालबात उभारे और अफसर मौसूफ ने उन्हें यकीन दिलाया कि इन मुतालबात को मुतल्लिका महकमों के साथ उठाया जाएगा ताकि उन्हें वक्त रहते पूरा किया जा सके। बाद में अफसर मौसूफ ने सीएससी वैन को भी हरी झंडी दिखाई। 29 अक्टूबर को हर बरस वर्ल्ड स्ट्रोक डे के तौर मनाया जाता है। इस मौके पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल श्रीनगर के शोबा न्यूरोलॉजी ने स्ट्रोक अपडेट एंड अवेयरनेस मौजू पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिस दौरान सुपर स्पेशलिटी अस्पताल श्रीनगर, स्किन सोरा और SMHS से वाबस्ता शोबा न्यूरोलॉजी के मुख्तलिफ माहिरीन ने मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं पर इजहार ख्याल किया। प्रोग्राम की सदारत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सामिया रशीद ने की। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल श्रीनगर के शोबा न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर व हेड डॉक्टर बशीर अहमद सनाई ने इस प्रोग्राम के हवाले से बताया। आपको पता है स्ट्रोक कितना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोक ये वर्ल्ड वाइड आउट ऑफ 56 मिलियन डेथ्स अकर एवरी ईयर, हर साल 56 मिलियन लोग मर रहे हैं डिफरेंट डिजीज की वजह से। उसमें स्ट्रोक और कॉर्नरी आर्टरी डिजीज कॉन्स्टिट्यूट करता है 25%। सो हम इसका बोल रहे हैं कि स्ट्रोक जो है ये वर्ल्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, मोर्टेलिटी, सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। सो हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि जो ये इस स्ट्रोक और इसके अवेयरनेस का मकसद है कि लोगों में कि स्ट्रोक के साइंस जो अर्ली इंडोर स्टेडियम गोगजीबाग श्रीनगर में 31वीं सीनियर कौमी वुशु चैंपियनशिप जारी है। इस चैंपियनशिप में 42 यूनिट शिरकत कर रहे हैं। कल शुरू हुई चैंपियनशिप 2 नवंबर तक जारी रहेगी और इसमें दीगर खिलाड़ियों समेत बैन-अक़वामी सतह पर तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ी और अर्जुन अवार्ड याफ्ता खिलाड़ी भी शिरकत कर रहे हैं। चैंपियनशिप की इफ्तिताई तकरीब में LG मनोज सिन्हा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर और कई दीगर आला सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।